Hello student, welcome to next lecture. Today is our sixth lecture of chapter 2nd basic of C programming. Okay, so let's see. First, the learning outcomes of this video. We see the simple C programs in this video. Okay, so up to last lecture we see various concept in C, basic concept in C programming. Okay, in first chapter we see algorithm and flowchart, and in second chapter we see the basic about C programming. Okay, so in this lecture we see the some basic programs of C program. Okay, we also see the programming in practical also. Practical में भी हम program देख रहे हैं. Okay, in practical we write some program and execute that program in Turbo C. Okay, so let's see. The first program is develop a C program to print hello world. Okay, so simple, क्या perform करना है, hello world print करना है. Okay, so for that here we write one program. First two are the header files. Hash include is the preprocessor, stdio.h and conio.h. These are the two header files. Why we mention header files? Because we use the various function in our program. Okay, in last lecture we see basic input output function. Okay, that is printf and scanf. Okay, so this function basic input output function is defined in which library? stdio.h library. Okay, so in every program we use the printf and scanf function, so hence this file is import here. Okay, so it is very important. Then next header file conio.h. In our program we use clr scr function and getch function. These two functions are defined in the conio.h. Okay, so let's next is void main function. Okay, every C program have one main function. Okay, without main function we cannot write the C program. ओके, हर प्रोग्राम में कंपलसरी है एक मेन फंक्शन. ओके, इनसाइड मेन फंक्शन वी राइट द कोड. ओके, सो फर्स्ट वी कॉल द clr scr फंक्शन कॉल किया है. ओके, सो सिंपल, व्हाट इज यूज ऑफ दिस फंक्शन clr scr? सिंपल, इसका मीनिंग है क्लियर स्क्रीन. ओके, जो भी आपका आउटपुट स्क्रीन रहेगा टर्बो सी में, जो आपका आउटपुट स्क्रीन आता है, ओके, वो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए ये फंक्शन यूज करते हैं clr scr. ओके, सो प्रीवियस जो आउटपुट रहेगा वो स्क्रीन पे वो क्लियर हो जाएगा एंड देन इट डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम. ओके, सो हेंस वी एट द स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम वी कॉल द फंक्शन clr scr. नेक्स्ट वन we use printf function. Printf, in last lecture I told you the printf is the output function. Okay, used to print some message or used to print some output on the screen. Okay, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम में क्या करना है, हेलो वर्ड प्रिंट करना है. सो सिंपल, आई पास द हेलो वर्ड इन द printf फंक्शन. पास किया मतलब ब्रैकेट में उसको लिख दिया. ओके, इन printf फंक्शन वी राइट द मैसेज इन डबल कोट. ओके, here bracket is complete and semicolon. What is use of semicolon? We use the semicolon in C programming language to terminate the statement. Okay, after completion of statement, in general English language we use full stop, but in C programming language we use the semicolon. Okay, then last we call the getch function. The use of getch function is it used to hold the output screen. ओके, आउटपुट स्क्रीन होल्ड करने के लिए ये फंक्शन यूज होता है. ओके, अगर आपने ये डिफाइन नहीं किया तो आपका आउटपुट आके वो सिंपल स्क्रीन को डिसअपेयर कर देगा. ओके, हेंस वी डिफाइन दिस फंक्शन, देन क्लोज द प्रोग्राम. ओके, सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ड. ओके, हेयर आउटपुट इज हेलो वर्ड, ये आपका आउटपुट आ जाएगा. ओके, इन प्रैक्टिकल ऑल्सो वी सी दिस प्रोग्राम. ओके, प्रैक्टिकल में भी हमने ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखा है. सो नेक्स्ट वी सी द सेकंड प्रोग्राम. द सेकंड प्रोग्राम इज डेवलप अ सी प्रोग्राम फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर नंबर. ओके, सो क्या करना है,
एडिशन करना है और मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशन से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो उसके लिए हमें प्रोग्राम डिफाइन करना है। सो बेसिक फर्स्ट हेयर आउटपुट कितना, इनपुट कितना रहेगा वो आपको फर्स्ट एनालाइज करना है, व्हाट आर द इनपुट्स एंड व्हाट आर द आउटपुट्स। ओके, फर्स्ट हेयर टू इनपुट लगेगा, 2 नंबर, ओके, जिसका एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन करना है। सो वी टेक ए एंड बी, 2 नंबर लेंगे ए एंड बी टू स्टोर द इनपुट वैल्यू। देन फॉर आउटपुट वी यूज add and multiplication. Okay, so for that we take the 2 variable. Okay, so let's see the program. First 2 are the header files, stdio.h and conio.h. Then we define main function. Inside main function here we define 4 variable. Okay, integer a comma b comma add comma mul. Okay, so first 2 a and b for input and second 2 add and mul for output. ओके, ये हो गया डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। व्हाट इज यूज ऑफ वेरिएबल? वेरिएबल यूज टू स्टोर द डेटा एंड प्रोसेस द डेटा। जैसे मैथ्स में हम लेते थे कंसीडर एक्स, सो सिमिलरली हेयर वी फर्स्ट डिफाइन डेटा टाइप एंड देन वी क्रिएट द वेरिएबल्स। ओके, देन वी कॉल द CLR SCR फंक्शन टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन क्लियर करने के लिए हमने ये फंक्शन को कॉल किया। Then next we use printf function to give the message enter value of a and b. Okay, यूजर को एक मैसेज देने के लिए हमने printf function लिया और मैसेज क्या प्रिंट किया? enter value for a and b. Okay, then after this line user enter 2 value. यूजर 2 value enter करेगा। Okay, so to store the a values in variable we write the scanf function. Scanf function, in scanf function first we write format specifier in double quote. Okay, in last lecture we see the all format specifier. %d is used for the integer. Here a and b, these two are the integer type variable. So here we define %d and user enter 2 value. Okay, so here I define 2 times %d. If user enter single value, that time I write 1 time. Okay, अगर उसने एक ही वैल्यू एंटर करना रहेगा तो एक बार ही लिखने हैं। ओके, यहाँ पे अगर एंटर 3 नंबर्स रहेगा तो 3 बार लिखना है। ओके, देन डबल कोट कंप्लीट कॉमा। ओके, अब फर्स्ट वैल्यू जो एंटर करेगा वो कहाँ पे स्टोर करना है, उसके लिए हमने वेरिएबल लिया ए। सो कॉमा के बाद आपको लिखना है एड्रेस ऑपरेटर ए, देन अगेन कॉमा सेकंड वैल्यू के लिए एड्रेस ऑपरेटर बी। ओके, सो बाय दिस वे वी डिफाइन द scanf फंक्शन। आफ्टर दिस फंक्शन फर्स्ट वैल्यू स्टोर इन ए एंड सेकंड वैल्यू स्टोर इन बी। Okay, so sequence is very important. If you change the sequence, then value is change. Okay, अगर मैंने B पहले लिख दिया और A को बाद में लिखा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। Okay, जो पहला वैल्यू रहेगा वो B में स्टोर करेगा, वो सेकंड वैल्यू A में स्टोर करेगा। Okay, so the sequence also very important. Then we write formula for add. Okay, addition कहाँ पे स्टोर करना है? add में। So add is equal to a plus b semicolon. Then multiplication के लिए mul is equal to a into b semicolon. Okay, so to execute this we write 2 formula. Then again to print the output, अभी जो addition perform हुआ उसका output लिखने के लिए printf /n is used for the next line. Okay, so first I write /n, then addition of a and b is equal to, again here write %d. Okay, %d, why? Because add is integer type variable. Okay, so उसके लिए मैंने %d लिखा कॉमा add /n again 2 for the next line. Okay, यहाँ पे नहीं लिया तो भी चलेगा /n. Okay, so again semicolon, सॉरी डबल कोट कंप्लीट कॉमा वेरिएबल का नाम जो आपको %d की जगह पे प्रिंट करना है। सिंपल इसका मीनिंग क्या है? %d की जगह पे वो वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कर देगा। सिमिलरली वी राइट द printf function for multiplication of a and b is equal to %d डबल कोट कंप्लीट कॉमा mul. सो mul में जो वैल्यू स्टोर है वो %d के जगह पे प्रिंट हो जाएगा। देन लास्ट गेट ch फंक्शन एंड क्लोज द प्रोग्राम। हियर इज द आउटपुट। फर्स्ट compilation of program is start from main function. This is very important point. Compilation of program is start from main function.
यहाँ से वो कंपाइल करना शुरू करेगा, एक एक लाइन को कंपाइल करेगा। ओके, देन आउटपुट फंक्शन printf, सो ये आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, एंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी। आफ्टर दिस लाइन यूजर 2 नंबर एंटर करेगा। ओके, यहाँ पे क्या किया है, 12 एंड 10, सो 12 स्टोर इन ए एंड 10 स्टोर इन बी। ओके, फर्स्ट नंबर 12 एंटर किया है तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12। सेकंड नंबर 10 एंटर किया है तो सेकंड बी का वैल्यू हो जाएगा 10। आफ्टर दैट ये परफॉर्म हो जाएगा। देन printf अगेन एडिशन ऑफ a and b is equal to 22. Why? Because here we add the a plus b, so a plus b 22. Again multiplication is 120. Okay, so this is the program for addition and multiplication. Okay, आउटपुट में क्या आता है, जो printf फंक्शन है वही आपका आउटपुट में आएगा, बाकी ऑल आर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन होगा उसका, लेकिन वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ऐड सिर्फ वो ऐड करके वहाँ पे स्टोर कर देगा मेमोरी में, बट इट नॉट प्रिंट एनी वैल्यू। जब आप printf लिखोगे वही आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो स्ट्रिंग लिख, यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट किया है, यहाँ पे आउटपुट प्रिंट किया है। ओके, सो दिस इज सिंपल प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम, डेवलप अ सिंपल सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। ओके, सो ये भी आपने मैथ्स में परफॉर्म किया रहेगा। एरिया ऑफ फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो फार्मूला याद होना चाहिए। ओके, सो सर्कल का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ओके, सो पाई इज द कांस्टेंट, दैट इज वैल्यू ऑफ पाई 3.14 एंड आर मीन्स रेडियस, सो आर स्क्वायर। सो इनपुट कितना लगेगा, एक ही इनपुट लगेगा, रेडियस। वाई? बिकॉज पाई का वैल्यू कांस्टेंट है। ओके, सो लेट्स सी दिस प्रोग्राम। फर्स्ट आई डिफाइन 2 हेडर फाइल्स। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू नो द व्हाट इज यूज ऑफ हेडर फाइल्स। ओके, बहुत बार मैंने बताया आपको, प्रैक्टिकल में भी मैंने 2-3 बार बताया कि व्हाट इज यूज ऑफ हेडर फाइल्स। ओके, देन हेयर वन एक्स्ट्रा line is added, has defined. Okay, in constant part we see this, to define the constant we use this has defined preprocessor. Okay, so has defined, then space, वेरिएबल का नाम क्या है, pi, pi. ओके, आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे मैंने pi लिया है। देन अगेन स्पेस एंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, क्या वैल्यू आपको प्रिंट करना है। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, द ऑल कांस्टेंट वी डिफाइंड बिफोर द मेन फंक्शन, ये आपको मेन फंक्शन के पहले डिफाइन करना है। ओके, देन मेन फंक्शन डिफाइन करो, void main, देन अगेन इन इनसाइड void main वी टेक वन इंटीजर वेरिएबल रेडियस। ओके, तो एक ही इनपुट लगेगा। ओके, देन फ्लोट एरिया। अभी यहाँ पे फ्लोट क्यों लिया एरिया, वाई? बिकॉज हेयर पाई इज इन फ्लोट वैल्यू, सो मे बी द एरिया इज मे बी इन फ्लोट। अगर आपने वैल्यू रेडियस का भी लिया तो उसका एरिया फ्लोट में आ सकता है। ओके, इफ यू डिफाइंड एरिया एज अ इंटीजर वैल्यू, दैट टाइम इट मे बी रिजल्ट इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज इट लूज द फ्रैक्शनल पार्ट, पॉइंट वाला जो वैल्यू रहेगा वो लूज कर देगा। सो इसके लिए एरिया का वैल्यू क्या लिया है हमने, फ्लोट में लिया है। ओके, सो दिस पॉइंट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, हियर आई राइट printf फंक्शन टू प्रिंट वन मैसेज, एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, आफ्टर दिस यूजर क्या करेगा, एंटर करेगा रेडियस। ओके, देन स्कैनएफ, यूजर एक ही वैल्यू एंटर करेगा रेडियस का। ओके, सो स्कैनएफ %d, आई राइट %d ओनली सिंगल टाइम। वाई? बिकॉज देर इज वन इनपुट ओनली। इन लास्ट प्रोग्राम वी टेक 2 वैल्यू a एंड b। ओके, यहाँ पे एक ही वैल्यू रेडियस का, सो %d सेमी डबल कोड कंप्लीट कॉमा एड्रेस ऑपरेटर रेडियस। यहाँ पे वेरिएबल का नाम एज इट इज लिखना है आपको, यहाँ पे जो मेंशन किया है वही नीचे लिखना है। ओके, देन सेमी कंप्लीट सेमीकोलन, देन फार्मूला फॉर एरिया, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस। ओके, सो व्हेन यू राइट द प्रोग्राम, डोंट राइट रेडियस स्क्वायर। ओके, देयर आर वेरियस फंक्शन टू फाइंड द स्क्वायर, बट दैट वी सी इन सम नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो आपको क्या लिखना है, स्क्वायर मतलब रेडियस इंटू रेडियस, इट ऑल्सो हैव सेम मीनिंग, बट प्रोग्राम नॉट एक्सेप्ट द आर स्क्वायर। ओके, देन printf फंक्शन यूज टू प्रिंट द आउटपुट, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू %f। ओके, सो यहाँ पे f क्यों लिया, वाई? बिकॉज एरिया इज द फ्लोट टाइप, इन प्रीवियस प्रोग्राम एडिशन इज इंटीजर टाइप, सो वी यूज %d। हेयर एरिया प्रिंट करना है, सो एरिया इज द विच टाइप, फ्लोट टाइप, सो यहाँ पे %f। देन गेट cs फंक्शन, देन
it program is closed. So output is first printf function कहाँ पे है, ये enter the radius of circle. So as it is print हो जाएगा. यहाँ पे यूजर ने enter वैल्यू क्या है 10. So radius का वैल्यू कितना हो गया 10. Then it print the area of circle is equal to 3.14. Sorry 314. यहाँ पे output is quite wrong. यहाँ पे चाहिए 314.0. ओके ऐसा आउटपुट आएगा आपका 314.0. ओके so this is simple program to calculate the area of circle. In practical also we see this program, third or fourth practical. Okay, so it is very easy. Then next we see the develop a simple C program to find the average of three numbers. Okay, so तीन नंबर का एवरेज फाइंड करना है. So hence first two are the header files, then we define main function, then we define three variables integer a b c. Why? Because average of three numbers बोला है. So input कितना चाहिए, तीन नंबर लगेगा और आउटपुट में एक एवरेज आएगा. ओके सो थ्री इनपुट ए बी सी देन फ्लोट ए वी जी. ओके सो आउटपुट के लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया फ्लोट. वाई? बिकॉज व्हेन यू फाइंड एवरेज इट मे बी इन फ्लोट, पॉइंट में भी आ सकता है वो, इसके लिए हमने वो फ्लोट ले लिया. देन printf function to print the message enter three numbers. After this line user enter three numbers. So in scanf we define format specifier %d three times, %d 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 double quote comma. First value store in a, so for that address operator a comma address operator b comma address operator c. So तीन वैल्यू आपका स्टोर हो जाएगा. और रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरिएबल नेम जो आपने स्टार्टिंग में डिफाइन किया है वही आपको यहाँ पे यूज करना है. इफ़ यू यूज अनदर, ओके सिंपल एग्जांपल इज यहाँ पे मैंने कैपिटल ए लिया, यहाँ पे स्मॉल लिया, तो देन इट डिफाइन द एरर. वाई? बिकॉज सी इज द केस सेंसिटिव लैंग्वेज. केस सेंसिटिव मीन्स कैपिटल ए इज कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इज नॉट सेम, इट इज डिफरेंट. ओके सो जो डिफाइन किया है वही आपको प्रोग्राम में यूज करना है. ओके देन वी फाइंड द एवरेज by formula avg is equal to a plus b plus c, तीनों का addition divided by 3. Okay, then print the average. So for that printf average of three number is equal to, here we use the %f. Why f? Because average in float, define किया है float में उसको, डबल कोड कंप्लीट कॉमा avg. कहाँ पे स्टोर किया है? avg वेरिएबल. देन नेक्स्ट यहाँ पे at last we use the get ch function. Okay, so program complete. Then output is enter three numbers. यहाँ पे तीन नंबर एंटर किया 10, 24, 31. Okay, so a is equal to 10, b is equal to 24, c is equal to 31. Okay, then average is equal to 21.66. So this is the simple program to find the average of three numbers. So this type of program we see in the second chapter. Okay, so these are simple program. We have many programs. From this we can find the percentage of student, write a program to find percentage of student, write a program to find area of square, write a program to find area of rectangle. Okay, so this program student try at home to try write this type of program, basic programs. Okay, and if you have system then try to execute in turbo c. turbo c में आपने execute किया तो भी चलेगा. Okay, see this practical and how I give the steps in practical also how we can execute the C programs. So here our second chapter is completed. From next lecture we see the third chapter, that is decision making or control structure in C programming. Okay, so thank you.